नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शादी के 4 दिन बाद आज अपनी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ श्री हरमंदिर साहब में माथा टेका और सरबत के भले की अरदास भी की। उनके साथ उनकी मां हरपाल कौर और उनकी बहन भी मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात भी की और कहा, पंजाब विधानसभा के लिए अलग जमीन मांगने वाले बयान को लेकर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अपने बयान में कहीं नहीं कहा कि चंडीगढ़ से पंजाब अपना हक छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पेड़, पानी और जमीन को पंजाब से नहीं जाने देंगे। सुखबीर बादल क्या कहते हैं? सुखबीर बादल तो वह नेता हैं जिन्होंने अकाली दल की सरकार रहते पंजाब के तमाम कार्यालयों को चंडीगढ़ से मोहाली शिफ्ट कर दिया। न्यू चंडीगढ़ मोहाली में बना दिया क्योंकि उनकी जमीनें वहां पर थी। असल में अकाली दल ने चंडीगढ़ से पंजाब का हक हटाने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी कहा, उस पार्टी को तो बात ही ना करें जिसके नेता खुद पेड़ कटवाने के लिए 500-500 रुपए लेते रहे हैं। देखो जी, मैं कोई लिख के दिता कि चंडीगढ़ तो दावा छड़ता जे चंडीगढ़ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਕੌਣ ਜੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਜਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਈਏ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਇਹ ਦਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਰਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿੰਨੇ DFO ਫੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣੇ। ਕੱਲ ਡਰੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1% ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਔਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਰਥਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨਾ शुरू होगा। उन्होंने यह भी बताया कि लुधियाना के मत्तेवाड़ा जंगलों में टेक्सटाइल फैक्ट्री का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा, इन जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही पब्लिक एक्शन कमेटी के साथ उन्होंने बैठक भी की और इसके बाद ही उन्होंने इसे रद्द किया है। वो केंद्र सरकार ने भेजी कैप्टन सरकार में कि उत्थे एक टैक्सटाइल इंडस्ट्री होनी है, तो कैप्टन साहब ने कहता ठीक है। तो कैप्टन साहब तो हर गल उनकी मनते ही रहे। तो वो जो साढ़े को आया तो असी कहा भी असी तो नहीं एक भी दरख्त बड्ढण देवांगे। सो पंजाब की धरती नूं, पंजाब के दरख्तां नूं, पंजाब के पानी नूं बचाउणा साडी प्रायोरिटी है। जे जरूरत पई उन्होंने किते होर दे देंगे। पंजाब पुलिस ने पिछले एक हफ्ते में पंजाब से 678 नशा तस्कर और सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ सख्ती रहे, इसके लिए हर हफ्ते पुलिस कमिश्नरों और SSP की परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिव्यू की जाएगी। सोमवार को पंजाब पुलिस के
आईजी डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने ये जानकारी दी और कहा अब हर सोमवार को वह मीडिया को यह बताएंगे कि नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई में कितने तस्करों को पकड़ा गया है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਸੀਪੀਜ਼ ਆ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 676 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਓਬਲੀਕ ਪੈਡਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 579 FIRs ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 5.57 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਕਰੀਬ 17 ਕਿਲੋ OPM, 25 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 7 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੌਪੀ ਹਸਕ ਔਰ 2.25 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਿੰਗ ਪਿਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਐਂਡ ਪਿਲਸ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਹੈ। DGP ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਕੰਸर्न यूनिट्स ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿलिटी ਆ, तो इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा शेयर होती है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पंजाब सरकार की नई एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। यह कमेटी जनहित के मुद्दों पर सरकार को सलाह देगी। वहीं आम आदमी पार्टी की इस नियुक्ति पर विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का कहना है कि राघव चड्ढा को सलाहकार कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया जाना पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बराबर है। पंजाबियों ने इस बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दी थी। ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान ने पंजाब सरकार को दिल्ली के हाथों ठेके पर दे दिया है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि रोपड़ जेल से पंजाब सरकार एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। रोपड़ जेल में बंद तमाम कैदियों की जांच कराई जाएगी कि इसमें कौन कौन से कैदी नशा लेते हैं और वह कौन सा नशा कर रहे हैं और इन्हें जेल में नशा कौन मुहैया करवा रहा है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆંકੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆંકੜਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ 40% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, DG ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ, IG ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਰੋਪੜ ਦੇ DC ਤੇ SSP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ सके। आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और विश्व की आबादी शीघ्र ही 8 अरब होने की संभावना बन गई है। आपको बताएंगे आंकड़ों के अनुसार कि किस तरह 1 अरब से हम कितने सालों में 8 अरब होने जा रहे हैं। 1804 में दुनिया की आबादी पहली बार 1 अरब हुई थी और 2 अरब होने में 123 साल लग गए। यानी कि 1804 से 1927 तक विश्व की आबादी केवल 2 अरब थी और 1927 से लेकर 1960 तक 33 सालों में हम 2 से 3 अरब हो गए। 1960 से 1974 यानी कि 14 सालों में 3 से 4 अरब आबादी हो गई विश्व की। 1974 से 1987 तक यानी कि
13 सालों में ही आबादी जो है 4 से 5 अरब हो गई। 1987 से 1999 तक यानी कि 12 साल में आबादी 5 से 6 अरब हो गई। 1999 से 2011 तक यानी कि 12 सालों में आबादी 6 से 7 अरब तक जा पहुंची। 2011 से 2022 तक खत्म होने तक आबादी जो है 8 अरब होने की संभावना है। अब सबसे बड़ी चिंता यह भी बुद्धिजीवियों को सताने लगी है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के लिए रहने के लिए मकान कहां से आएंगे, उनके खाने का इंतजाम कहां से होगा, क्योंकि हमारी कृषि ऐसी नहीं है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जा रही है सभी का पेट भर सके, इसलिए हमें नए तरीके भी इजाद करने होंगे। रेप केस में भगौड़ा करार दिए जा चुके लुधियाना के पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने बैंस को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान भगौड़े बैंस की छटपटाहट भी सामने आई। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के मामले में उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया जा रहा है, शीघ्र ही सच्चाई सामने आ जाएगी। टोटल पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है। पर्दे के पिछे बादल फैमिली, फ्रंट के उत्ते उन्हां दा फीला ते कागजी रेप आ। कागजी रेप रचाउण वाले लोग मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਰੇਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सोमवार को फिर अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। होशियारपुर पुलिस ने लॉरेंस को पहले ट्रांजिट रिमांड पर लिया और बाद में होशियारपुर की कोर्ट में पेश कर उसका 8 दिनों का रिमांड ले लिया है। जब लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में लाया गया तो भारी पुलिस फोर्स पहले ही तैनात थी। लोगों को भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि कोर्ट में जाने वाले वकीलों को भी बड़ी परेशानी हुई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज अमृतसर की अदालत में पेश किया गया, तब वहां पर वकीलों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। इसी को लेकर अमृतसर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन कुमार ढंड की ओर से माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि किस तरह गैंगस्टरों को वीआईपी सुविधाएं पुलिस की ओर से दी जा रही हैं। 2 किलोमीटर तक किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया, जो कि कानून के खिलाफ है। आपको बता दें कि पहले ही विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ये कह चुके हैं कि जानबूझकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आखिरकार उसकी सुरक्षा में इतनी पुलिस लगाने की जरूरत ही क्या है। लॉरेंस बिश्नोई के बाद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को भी पुलिस अमृतसर ले आई है। अमृतसर रूरल पुलिस ने मानसा कोर्ट से जग्गू भगवानपुरिया का ट्रांजिट रिमांड हासिल किया, जिसके बाद अमृतसर रूरल पुलिस ने उसे श्री बाबा बकाला साहब कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस को 6 दिन का रिमांड मिल गया है। अब जग्गू से पूछताछ की जाएगी कि वह किस तरह वारदातों को अंजाम देते थे जेल से बैठकर। कितना दिन का रिमांड मिला? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 181 FIR ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार नियोजन को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि यह ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा ना हो पाए। जब हम परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तब इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसंख्या असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना हो पाए। ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी के बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उनके जनसंख्या स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। इस वर्ष के अंत तक इस संभावना है कि दुनिया की आबादी 800 करोड़ यानी 8 अरब
के आंकड़े को छू लेगी। भारत 135 से 140 करोड़ की आबादी का देश बन रहा है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, और जनसंख्या की जो स्पीड है यह आने वाले कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी वर्तमान में है, और अगले कुछ ही वर्षों के अंदर ये 25 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। जनसंख्या अगर हमारे पास है और उसके पास पर्याप्त संसाधन है, स्टेट के पास या देश के पास पर्याप्त संसाधन है, वह स्वस्थ है, वहां पर उनके लिए हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, तो समाज के लिए एक उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन जब यही अभाव से, अस्वस्थता के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से वह किसी विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहा है, वह अपने आप में एक चुनौती है। और उस चुनौती को ध्यान में रखने के लिए ही यह विश्व जनसंख्या दिवस पूरी दुनिया की मानवता को बचाने के लिए, यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के अंदर जो अनेक दिवस दिए हैं, उनमें से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, यह जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, इसके स्थिरीकरण के बारे में व्यापक जागरूकता के अभियान के साथ जोड़ने का कार्यक्रम है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह पंजाब में नेता लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं। उन्हें मात्र सस्ते अनाज, सस्ते राशन का लालच दिया जाता था, और ये खुद किस तरह बेशकीमती जमीनों को अपने नाम करवाते गए। बात करेंगे कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके बलबीर सिंह सिद्धू की। ये हेल्थ मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इनके ऊपर आरोप है कि बाल गोपाल गौशाला के कारण इन्होंने 10.5 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली, और ये इस जमीन का ठेका कितना था, 25,000 रुपए प्रति एकड़। चंडीगढ़ के आसपास जहां पर जमीन की कीमत इंचों के हिसाब से है, वहां पर मंत्री मात्र 25,000 रुपए प्रति एकड़ पर 33 साल के लिए जमीन अपने और अपने भाई के नाम करवा लेते हैं, और अपने घर का एड्रेस भी दे देते हैं। चन्नी पर मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं पंजाब के, चरणजीत सिंह चन्नी, उन पर भी आरोप लग चुके हैं कि अपने इलाके में उन्होंने माइनिंग करवाई। हालांकि उनके भांजे के घर से भी करोड़ों रुपए मिले थे। यह पैसा ईडी की ओर से बरामद किया गया था। नेता और अधिकारी ही माल खा गए, ये सच है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि नेता ही पंजाब को लूटते रहे। ये मंत्री और अफसर ही किस तरह पंजाब को लूटते रहे, सारा कुछ आपके सामने है। किस तरह से बेशकीमती जमीनों को अपने नाम करवाया जाता है, यह भी सामने आ चुका है। आरोप है कि गौशाला के लिए 33 साल के लिए कौड़ियों के दाम पर 10.5 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली, और बाद में वहां पर प्लानिंग कर दी कि यहां पर बैंक्वेट हॉल बनाना है। चंडीगढ़ के पास गांव है बिलोंगी, मोहाली जिला का यह गांव है। यह जमीन वहां पर थी। अब फाइनेंशियल कमिश्नर जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायत की हैं, सीमा जैन, उन्होंने इस डीड को कैंसिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं, और 25,000 एकड़ प्रति एकड़ ये जमीन लीज पर ली गई, और वह पैसा भी जमा नहीं करवाया गया था। अब आदेश है, जब से जमीन इनकी ओर से ली गई थी और अभी तक कितनी राशि बनी, कितनी जमा करवाई और कितनी बकाया, इसकी रिपोर्ट भी मांग ली गई है। गांवों के लिए यह जमीन ली गई, जमीन पर बैंक्वेट हॉल कैसे बन सकता है, यह भी जांच का विषय है। आम आदमी तो अपने सारे जीवन में अपने घर का सपना देखता है कि वह कभी अपना घर बना पाएगा या नहीं, लेकिन यहां हमारे नेता किस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अरबों रुपए की जमीनें कौड़ियों के दाम अपने नाम करवा रहे हैं। हालांकि सिद्धू ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और कोर्ट में जाने की बात भी कही है। हम नहीं कह रहे
ये एक इंग्लिश अखबार की ओर से भी लिखा गया है कि किस तरह जमीन को अपने नाम करवाया गया और वहां पर बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी थी। अब सच्चाई जनता के सामने आनी है, कोई कार्रवाई होगी या नहीं ये तो समय ही बताएगा। विजिलेंस की ओर से इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन दिनेश बस्सी को आज कोर्ट में पेश कर उसका 2 दिन का रिमांड और हासिल कर लिया गया है। आरोप है कि दिनेश बस्सी ने काफी हेराफेरी की है, जो विकास हुआ उसमें भी घपलेबाजी की है और बहुत सी फाइलें दफ्तर से गायब हैं। विजिलेंस इसकी जांच कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।